Hello. Hi. Can you hear me now? Yes, but volume is little low now. But okay. Let me connect my hands free. Hello. Not that audible. Something is Now is it going on. better? Yeah, correct. Yeah, is it? Yeah, better. Is it Yes, better now? now. Can you hear me? Yes, Okay. it's better. Okay. Hi. Okay. Yeah, I guess hi, because I guess it's because the headphone was hanging around. That's why there was some issue. So hi, Mithil, how are you doing? Okay. So I'm fine. How are you? I'm doing good. So can you tell us a bit about yourself? As you know, my name is Mittal Bhatt. I am by profession software engineer. I was doing a job before my baby, but after that, just a homemaker and a proud mother. And just a and proud. And recently, I started my YouTube channel, Genius Mathematics. It's my son and tricks and teach techniques. So that's about me. Okay. First of all, I'm extremely sorry. I should have just spoken about this before. In a very short duration of time, Mittal got around 3,000 subscribers, which itself is a huge achievement for any YouTuber. So Yeah. can you just tell us about how you started your journey from your first video to reaching 3,000 subscribers in such a short time? Um, the first video was about flags, in which my son was showing flags of some countries, and I thought that just showing off my son's knowledge is not enough. I should tell everyone how to teach kids these things. So in that video, I also give some tips to teach kids in one way, so that they don't get bored and they love learning these things. So first videos मैंने I think last March में upload किया था, just before this lockdown and corona, and after that that's this corona things happened. As and then I don't have exact count of how many videos I uploaded, but yeah, it went very well. Response of mothers is very nice. They all love tips and so blessed. It feels very nice. Uh, And your, today, your, 1,000 subscribers. Sorry, my okay. voice. No, no, your video is getting stuck and your voice is cracking. I don't know if there's an issue with you, on your side Oh, or from my side. But okay, yeah, yeah. Just please go ahead. Please go ahead. okay. So that's the journey. Yeah. That I uploaded videos of teaching papers, teaching spellings to kids, and after like बच्चों में लाइक सन की स्कूल में एवरी वीक रहता है या एवरी फेस्टिवल पे रहता है कि बच्चे को इवन ही Hmm. जूनियर केजी, सो जूनियर केजी बच्चे को 2 3 लाइंस 4 लाइंस वॉट एवर उनको एक स्पीच देनी होती है हर एक फेस्टिवल के ऊपर या फिर किसी Hmm. टॉपिक पे ऊपर, सो दैट दे गेट कॉन्फिडेंस. So Hmm. that I started that speeches also, a little speeches. Like बहुत सारे मदर्स को होता होगा कि स्कूल वालों ने तो टॉपिक दे दिया कि भाई हाउ यू स्पेंट दिवाली वैकेशन, उस पे कुछ बच्चे Hmm. बोले. Hmm. बट फिर Hmm. मदर्स को सोचना पड़ता है कि ये मतलब क्या बोले एग्जैक्टली, कि क्या बोलना है, बच्चे को क्या प्रिपेयर करवाएं.
So I started that speeches also, so that mothers can prepare their kids for that also. Yeah, that is public speaking and communication is something that is very essential in today's time. And a lot of mothers are confused. It's not that mothers can't teach, it's just that there is so much of information available that mothers get scared. There's too much of information online. Even I also search on YouTube and Google Yeah, that for some topics, but on that Google and YouTube there are long speeches are there, which yeah, this kid at this age can't prepare all these things. So yeah. I prepare a very short sentences and very easy speech for them. Yeah, I just saw your video on that you had made on Guru Purab. I guess it was uploaded a couple of days ago. Yes, yes, That was a really beautiful video. I mean, not only for kids, even for adults, it's like, we get our required information, that's it. yeah. There is not too much of information, because what happens in Google and YouTube is you have too much of information sometimes. So I think that is one thing that's wonderful about your channel. I really like that part about your channel. So can you tell us about your son? Oh, he's also there. Yeah. Please get him on screen. Please get him on screen. No issues. Just a minute. Pratham, say hi. Hi. Can you tell us about your son? He's now 4 years old, and Pratham, go beta. And he made 2 records in India Book of Records. Yeah. One is for reciting multiplication table up to 40. Like Oh, that's हमने अभी wonderful. स्कूल में शायद हाँ हमने अभी शायद स्कूल में 1 to 10 या मैक्सिमम 20 तक हाँ, रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने उतना ही शायद सीखा होगा. मैंने तो वहां तक ही सीखा है. सो बट उसने इस एज में ही 40 तक के टेबल्स याद कर लिए. लाइक उसको कहीं से भी बीच में भी पूछ लो 39 6 then he can answer. I think that's So- wonderful. So how did you And, train him? So how did you train him for that? The training was like मोस्टली मैं रात के टाइम एज अ लोरी वो सुनाती थी. स्टार्टिंग ऐसे किया था, लाइक मैंने हाँ, हाँ. 1 to 10 तो मैंने उसी तरह से सिखाए थे उसको. जस्ट मैं बोलती रहती थी, रात को गाती रहती थी सोते टाइम, और या फिर किचन में काम कर रही हूँ तब मैं बोल रही हूँ, वो सुन रहा है. ही वॉज जस्ट लिसनिंग. उसको मैंने कभी नहीं पूछा कि बेटा चलो मेरे पीछे आप बोलो, मुझे सुनाओ. स्टार्टिंग में ये बिल्कुल भी नहीं करना है. स्टार्टिंग में सिर्फ उसको सुनने दो, डोंट फोर्स देम. उसके बाद अब हम ही अब अपनी ही बात कर ले. हम कोई गाना जब सुनते हैं Yeah. तो अगर दिन में वो गाना 3-4 बार बजता रहता है, सो वो हमारे माइंड में स्टार्ट हो ही जाता है कि वो गाना हमारे मुंह पे चढ़ जाता है. तो इसी तरह बच्चों के साथ होता है. तो उसी तरह उसने थोड़ा स्टार्टिंग में उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर तो उसी ने मतलब मुझे 40 तक तो वो ही ले गया कि इसके आगे अब और क्या है. 30 तक खत्म हुआ तो अभी 31 क्या है. फिर उसने ही स्टार्ट किया. और दूसरी चीज मैंने अपने घर में फिर चार्ट्स लगा दिए, उसके वॉल चार्ट्स हाँ. टेबल्स के. Okay. और रिवीजन के लिए ज्यादा कुछ उसका मतलब सर मत खाओ कि बेटा चलो बोलो बोलो बोलो, उससे वो इरिटेट हो जाएगा. उससे अच्छा आप उसको जस्ट वीडियो बता दो या फिर खुद बोल के बता दो. आप अगर उसको हर दिन पकड़ के बिठा दोगे ना, चलो बैठो 6 का टेबल बोलो, चलो बैठो 20 का टेबल बोलो, तो वो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा. उसका इंटरेस्ट वहां से चला जाएगा. सो मेन थिंग है बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, उसको Yeah. कभी भी कोई चीज बर्डन ना लगे. सो दैट इज द ओनली थिंग जो करनी चाहिए बच्चों के साथ. नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे. क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर हम माओ का ही पेशेंस चला जाता है
क्योंकि स्कूल से हाँ इतना बोलते हैं कि नहीं आज 4 पेज लिखो, कल 6 पेज लिखो, कल तक ये बाय हार्ट करो, वो बाय हार्ट करो। तो क्या होता है ना कि हमारा ही पेशेंस कम हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। अरे टीचर ने तो इतना होमवर्क दे दिया, अभी करो करो। तो कई बार अनजाने में हम ही ज्यादा प्रेशर डाल हाँ देते हैं बच्चों पे, तो वो भी होता है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा मेथड सिखाया है बच्चों आपके बेटे को। और मुझे लगता है कि अगर हम सब माएँ यही टेक्निक यूज करें तो शायद एटलीस्ट जो हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप है वो तो खराब नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़े घर में ऑफ पढ़ाई पे ही कोर्स। होते हैं। वो सही तो बात है। वो तो हर घर की कहानी है, माँ और बच्चों के बीच पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। और अब हाँ प्रथम के दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कुछ हाँ, बताइए। जो दूसरा रिकॉर्ड है उसका, ये जो पहला था वो तो मतलब वो पूरे इंडिया में या फिर मे बी वर्ल्ड में, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट वर्ल्ड, बट 99% ही इज द ओनली वन जो 40 तक के टेबल्स इस एज में बोल रहा है, राइट? सो दैट इज वन, एंड अनदर वन इज फॉर मल्टीपल थिंग्स। उसमें उसने 206 कंट्रीज के फ्लैग्स आइडेंटिफाई किए हैं। हाँ देन हाँ। हर एक कंट्री के कैपिटल्स बताए हैं, और इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सारी आइडेंटिफाई की है, उसके भी कैपिटल्स बताए हैं। और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली। वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में सारी कंट्रीज आइडेंटिफाई की है, हम्म। और नेशनल सिंबल्स, देन ट्रैफिक साइंस, देन हम्म। श्लोकास, 11 श्लोकास he recited for that, and freedom fighters. There are so many things. So नहीं, this दैट्स is like, नो दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल कि इतने छोटे से एज में, वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि एज इज जस्ट अ नंबर, आई मीन आई थिंक प्रथम जस्ट प्रूव्ड इट दैट एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट yes, है, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है, तो आप उसको जान के ही रहोगे। तो हाँ मित्तल जी, जनरली क्या होता है ना, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे एडिक्टेड है। और कई बार क्या होता है, वो सिर्फ कुछ भी देखते रहते हैं एब्सेंट माइंडेडली। तो हम बच्चों में क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि आपने प्रथम में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, अ, उसे एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ 30 के बाद 31 आता है, तो 31 का टेबल्स मुझे पढ़ना है। तो हम बच्चों में उसी तरह से इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी कैसे ला सकते हैं? एक तरीका आपने बताया कि उनको फोर्स मत कीजिए, उसके अलावा कोई हाँ। और टेक्निक जो हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं? ओके, तो उसके लिए टेक्निक जो यूज करनी है वो होती है कि आप जैसे कि ये मेरा एक पपेट है, मैं इसको, और एक डॉल है हमारे पास, मैं उसको बहुत यूज करती हूँ। तो अगर मुझे उसको कोई फ्लैग पॉइंट आउट करना है या फिर टेबल्स भी गाना है, तो ये पपेट गाएगा, मैं नहीं गाऊंगी, ये पपेट गाएगा। ओके। और लिटिल बिट वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, जैसे 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो इस तरह का अगर कोई चीज आप यूज करोगे ना, तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा, और वो खुद ये पपेट लेकर आपके पास आएगा कि मम्मी आगे का गाओ। तो नहीं। इस तरह से कोई चीज आप यूज कीजिए, तो हाँ। उसको आएगा कि चलो, और अगर ये खत्म हो गया, मम्मी अब नहीं कर रही है, चलो मम्मी को बोले आगे का बताओ, तो मम्मी ये यूज करेगी, ये चीज, ये पपेट यूज करेगी। तो इस तरह से अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। और अप्रिशिएशन इज मस्ट, या। अप्रिशिएशन हर बार देना है उसको, चाहे वो थोड़ा सा भी, एक भी फ्लैग वो सही बता देना, तो उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करो आप। तो उसको होगा कि मैं दूसरा करूंगा तो मुझे और अप्रिशिएशन मिलेगा। तो दैट इज द थिंग, अप्रिशिएशन। और लिटिल बिट लाइक उनकी एज में आके उनसे बात करो, नॉट लाइक अ मदर और टीचर, उनकी एज पर आकर उनसे बातें करो, तो वो सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा टिप दिया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने को, क्योंकि कई बार बच्चे हमारे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें यस।
जैसे कि आई हैव अ टॉय विच इज अ डॉल एंड वी कॉल हर माशा, वो माशा एंड द बेयर कार्टून, या ये हाँ 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 relation. So, wherever my kid sees Masha, he relates to that more rather than मैं उसे कुछ सुनाऊं, स्टोरी बना के सुनाऊं. अगर उस दैट्स स्टोरी में if करेक्ट there is a character called as Masha, then he is very happy. So I यस get my job दैट्स done करेक्ट very easily. That's a wonderful tip, Mittal ji. Uh, what is one thing that you think that our education system is lacking today? आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है या फिर कुछ ऐसा बदल गया है जो हमारे टाइम पे अलग था और अभी अलग है? नो एक्चुअली अभी मेरे सन का तो अभी स्कूल एजुकेशन तो ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, सो आई कैंट ओके. कमेंट ऑन दैट मच. बट हाँ, प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा ही रहना चाहिए, एंड रादर देन दिस बुकिश थिंग. लाइक बुक में अगर आप उसको पढ़वाते रहो लिखाते रहोगे. एक्चुअली मेरे सन की अगर मैं बात करूं, तो मैं उसको बोलती हूँ ना कि एक पेज भर के तुम ए लिखो, हाँ. तो वो नहीं लिखता इन द सेंस वो बोर हो जाता है. 2 लाइन लिखता है, वो बोर हो जाता है. पर उसकी जगह पे मैं उसको बोलती हूँ कि चलो हम स्पेलिंग लिखते हैं, कोई चलो हम कैट लिखते हैं, तो वो लिखता है. या तो या फॉर प्रैक्टिस दैट इज करेक्ट. स्कूल की में जो है वो, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग. फॉर या प्रैक्टिस, फॉर लाइक, पर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए. उसके बाद अगर बच्चा ज्यादा बोर हो रहा है, तो वो चीज मतलब एज अ मदर हमें फिर छोड़ देनी चाहिए. हमें कुछ और वे ढूंढना चाहिए उसका, कि अच्छा मेरा बेटा ये करके बोर हो रहा है, मुझे तो मतलब है वो अल्फाबेट सीखे लिखना, ठीक है, मेरा मतलब वो होता है. तो ये जरूरी नहीं है कि वो ए ही 10 बार लिखे. वो स्पेलिंग्स लिख सकता है. मैं उसको कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दूं कि देखो ये चीज, कोई उसका टॉय रख दिया और उसका नाम लिखो, तो उसको लिखने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है. तो कोई भी चीज जहां पे बच्चा बोर हो रहा है, लीव इट, लीव इट एंड फाइंड अनदर वे टू टीच द सेम थिंग. दैट इज अ पॉइंट. कि बोर हो रहा है और आप उसको वही वही करवाते रहोगे बाय फोर्स, तो आप दोनों के रिलेशन भी खराब हो गए और बच्चा तो कुछ सीखेगा ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो फिर. या वॉइस इज नॉट कमिंग, सॉरी. you hear me? Not at all. Yeah, now okay. Sorry, interrupt you. Yeah. Not at all. Yeah. It's coming and going again and again. No. Hello. Yeah. Yes, Okay. now it's Yeah. So what I'm saying is even I have had that experience because मेरे बेटे का भी राइटिंग थोड़ा लेट हुआ because स्कूल से क्या होता था कि होमवर्क दे देते थे वो, मतलब आज के दिन ये 4 पेजेस लिखो. वो बच्चे को समझ में आ हाँ. रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, सिर्फ 4 पेजेस लिखो. तो वो लिखवाने में इतना झगड़ा होता था, इतना स्ट्रेस होता था, वो लिखने में इंटरेस्टेड नहीं था. I ended up changing his school for that reason. It Oh, went on that bad. तो oh. ये बहुत कॉमन चीज़ है. एटलीस्ट बॉम्बे में तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कूल्स जो सिर्फ जो ये रट्टेबाजी सिस्टम है वो प्रमोट करती है बच्चों को में, इतने छोटे से एज से ही, मतलब 4 साल 5 साल से ही आप लिखाते जाओ लिखाते जाओ लिखाते जाओ और फिर हो गया. उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं. दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी. लेकिन आज की तारीख में जब हमारे पास लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है जो ऑलरेडी आपका 90% काम कर रही है, कर रहे हैं. तो आप तो आपको यू नो इट्स नॉट एसेंशियल दैट यू नीड टू do certain things by rote system. You have to think ahead of that Think laptop or right. that machine. That is what the education system is not understanding, at least as of now. So can you tell us how do you shoot your YouTube videos? Because क्या होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे मॉम्स हैं जो अपना कुछ
बिजनेस करना चाहती है या फिर कंटेंट क्रिएट करना चाहती है, लेकिन क्या होता है, सबको ऐसा लगता है अरे मेरा बच्चा छोटा है, बच्चा डिस्टर्ब करेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो हाउ डू यू बैलेंस योर करियर एंड योर फैमिली? लाइक बैलेंस मतलब कोई देखिए YouTube की अगर बात करें तो YouTube में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे हो आपके, आप कहीं फिक्स हो। मॉम्स के लिए यही बेस्ट इसीलिए है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वर्क कर सकते हो। लाइक अगर मुझे वीडियो शूट करना है तो मैं कोई ऐसा टाइम ढूंढूंगी जब मेरा बेटा सो जाता है, उस टाइम पे मैं वीडियो शूट करूँ, या फिर कोई मेरा ऐसा टाइम हो जहाँ पे मेरे हस्बैंड फ्री हो और वो उसको कहीं मैनेज कर रहे हो, उस टाइम पे शूट करो। और शूटिंग के लिए अभी तक तो मेरे पास कुछ मतलब ये मोबाइल के अलावा और कुछ है नहीं और कुछ ये हैंड्स फ्री भी मैं तो यूज नहीं करती हूँ, बस जस्ट मोबाइल है और आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। और काइंड मास्टर वाला मैं जो ऐप है हाँ। वीडियो एडिटिंग के लिए, मैं वो यूज करती हूँ। ज्यादा वैसे एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पर जैसे कि मेरे स्पीचेस के वीडियो मैं बनाती हूँ, आपने जो गुरपुरब की बात की, या उनके लिए स्पेशली वो वीडियो एडिटिंग ऐप चाहिए होती है, तो वो यूज करती हूँ। और बाकी तो अपनी ही बात बोल रही है, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वही बात बतानी है सबको, अपने दिल की ही बात जो खुद अप्लाई की हो। मैं मेरा एक ये फिक्स है, मैं कहीं भी कोई और चीज नहीं बताती, जो मैंने किया है मैं बिल्कुल वही की वही चीज ही बताती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब ट्राई एंड टेस्टेड, यू मीन आई मीन ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग ही मैं अपनी यूट्यूब पे चैनल पे बताती हूँ। कभी कोई मुझे पूछता है ये चीज कैसे सिखाते, अरे भाई मैंने ये नहीं किया है अब तक, सो हाउ कैन आई टेल। या मुझे पता है, मैंने दूसरों के वीडियोस देखे, मुझे पता है कि ये चीज ऐसे करनी है, पर मैंने जब तक की नहीं तब तक मैं नहीं बताऊंगी किसी को वो चीज। Yeah, that is a wonderful way to conduct your channel. One last question before we wind up. मित्तल जी, what is one message जो आप सारे moms को देना चाहती है? That one message is like don't underestimate your child. अगर आप कि कोई प्रथम का वीडियो देखेगा, एक ये चैनल ओपन करने का एक ये पहला मोटो यही था कि किसी को इंस्पायर करें, कोई जाने कि अच्छा इतना छोटा सा बच्चा ये भी कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि 3.5-4 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक बच्चा करे, पर अगर प्रथम 206 फ्लैग बता रहा है, तो अगर कोई बच्चा 5 फ्लैग भी जान ले इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, तो दैट इज बेटर। लेट देम नो अबाउट द वर्ल्ड, एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग फ्लैग्स, एनीथिंग। अपनी जो बाउंड्रीज, हम सोचते हैं कि इतना छोटा सा बच्चे को हमें सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स सिखाने हैं, नहीं, इतना ही मत सोच के बैठो कि मेरा बेटा नहीं करेगा, मैं उसको बिठाती हूँ वो नहीं बैठता है। उसको मत बिठाओ, क्यों बिठाना है, उसको मत बिठाओ, उसको खिलाओ, कुछ ना कुछ ऐसे टॉयज लेकर आओ, उसको और एक चीजें सिखाओ, आप कहीं से भी कोई भी। इवन मैं तो बोलती हूँ मोबाइल की भी और टीवी की भी अगर हम बात करें, दैट इज नॉट दैट मच बैड। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। जैसे कि मैंने ही टेबल्स का रिवीजन करने के लिए यूट्यूब के वीडियोस यूज किए थे। जब भी उसको स्क्रीन टाइम देना है तो उसको अच्छा स्क्रीन टाइम दो आप, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी अपने हिसाब से यूट्यूब पे देख रहा है, ऐसे मोबाइल उसके हाथ में मत दे दो उसको। उसके मोबाइल में पर्टिकुलर ऐप, पर्टिकुलर वीडियो ही दो, जो देख के वो कुछ ना कुछ सीखे। दुनिया में और भी मतलब डिस्कवरी चैनल ये वो बहुत कुछ जाने वो। मैं खुद भी पहले सोच रही थी कि इतना छोटा बच्चा ये सब नहीं सीखता है, पर मतलब मेरा भ्रम तो उसने तोड़ ही दिया पूरा के बहुत कुछ सीख सकता हूँ मैं तो तो ऐसी, और ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरे बेटे ने सीखा है, मेरी चैनल से बहुत सारी मदर्स के मुझे बाद में रिप्लाई आए हैं कि आपके वीडियो देखकर मेरा बेटा 5 तक टेबल सीख गया, आपका देख के मेरा बेटा इंडिया का मैप सीख गया। तो
हर एक बच्चा कर सकता है, आई एम सेइंग दैट. सो जस्ट गिव अ ट्राई. Don't think my son, my daughter cannot do it. Try it once and then say it. Okay, so Yeah, that's that the message. And appreciate all the time. Appreciate all the time. Kids love appreciation. वो और भी ज्यादा बेटर करेंगे, और भी ज्यादा. ट्राई इट. गुस्सा कभी मत करो. हाँ, हालांकि हो जाता है लिटिल लिटिल कभी. आई अग्री विद दैट. कोई दिन हमारा अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा हो जाता है, पर ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज yeah, पॉसिबल. yeah, that's absolutely true, at least for mothers like me. Uh, yeah, but I really agree with both the points that children, their minds are like a plain canvas. एक plain canvas की तरह है उनका मन. उन्हें freely जो करना है करने दो. Let them do whatever they want to do, and that is how they will grow. Because हमें बचपन से यही सिखाया गया कि बच्चे जो है उनकी limitation इतनी ही है. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने सही तरीके से कहा कि वक्त आ गया है कि हम बहुत सारे जो प्रेजुडाइसेस है, जो पहले से ही हमने जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि बच्चे इतना ही कर सकते हैं, बच्चे उतना ही पढ़ सकते हैं, वो सब जो एक भ्रम है वो सब तोड़ दे. Thank you so हाँ. much, मित्तल जी, for coming on our show. प्लीज इस सेशन को एंड करने के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपके यूट्यूब चैनल और आपका जो फेसबुक पेज है उन दोनों के लिंक्स आप दे दीजिए, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स ओके. हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं तो दे कैन गेट इन टच विथ यू. This was definitely a ओके. very enlightening session for all us mothers, because आपने ना कि हमें ये सिखाया कि हमें बच्चों के साथ कैसे बच्चों को कैसे एनकरेज करना है पढ़ने को. यू ऑल्सो टॉट अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज हाउ नॉट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड, यस, विच इज दैट इज मेन. सी, अगर इवन मोर बच्चा इम्पोर्टेंट. नहीं सीख रहा है दैट इज ओके, बट या रिलेशनशिप तो स्पॉइल नहीं ही होना चाहिए. दैट इज कंपल्सरी थिंग. yeah, and that is one of the most beautiful takeaways of this interview. So thank you so much, Mittal ji. Hope to see you soon once again. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच श्रेया. Yeah. बाय.